Good afternoon, friends. Today we have Megha Chopra. इन्होंने अभी लोहड़ी के ऊपर she sang a song, and we have the director, the music director, Shashwat ji, and it's a very appropriate name he has. So most of the people, we watched the video, we loved it. Thank you. और आपने बोला that you are an entrepreneur. Yes. And because of Lodi, you utilize this time to means kind of sing the song. Right. So what musical training did you undertake? आपका क्या? So I have trained, as a child. I have, I like to say that I was born on stage because singing and dancing and writing is what defines me. So I like to think of myself more as an artist and less of an entrepreneur. In fact, I did capitalize on my entrepreneurial skill by capitalizing on the opportunity, that COVID time, and everyone, there was so much melancholy all around, and everyone was feeling so low, and there was no spirit of the festivals. Yes. And I thought, why not bring some fervor to the Indian festivals, and why don't we bring back the same enthusiasm and the spread more joy. Right. And the festival fervor you got around. In fact, that's what my YouTube channel, my Instagram handle is all about. It's called Indian Roots by Megha. So it is all about reconnecting everybody to your Indian roots. Great, wonderful. Yes. We'll come to Shashwat ji. Since you're the music director, so when you decided to, did you have her in mind, or particularly after you met, then you penned it down, or how was it like? The lyrics and everything, I did not pen down the lyrics. Oh, somebody else? It's a tradition. It's a folk song. You picked it up. All right. It's not even a song. It's basically a rhyme, a folk rhyme. Okay, it's a folk rhyme. It's a folk rhyme. Some people have tried to make it into a song, so we've also attempted that. Right. And of course, the idea came from Megha. So from the very beginning, when I was trying to put this together, I had Megha in mind. And she's a Punjabi kudi, so that means an address and She is a Punjabi. Yes. Definitely, and that comes out in the song. In fact, when I was working with her, I told her that you have to really bring that Punjabi out to the fore because this is a folk song. Exactly. So you have to be a little rustic. So which she did very, very brilliantly. That's great. I think now we're getting some indication to sum it up. There are a lot of people in the queue, so we'll close it. And our friend Shailendra is there. I would like him also to join you for a second. I'll take a picture. Sure. That's it. Thank you so much, Megha. Thank you. एक picture ले लो इनका. 30 second. No, I'm sorry. आप आगे आ जाइए. आपका भी आ जाएगा.
थोड़ा सा एक कंटेम्प्रेरी के साथ गाने को गा के करेगा। तो मेरे ख्याल में ये जो वर्जन है सुंदर सुंदरी का, ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी अर्बन और नया फील है, एंड एट द सेम टाइम इट रिटेन्स दैट विलेज विलेज। हम बताया कि गाने के बारे में आपने काफी मतलब सर्च किया है, ये हम जान रहे हैं कि लोहड़ी का एक्चुअली मतलब क्या है, कि रात क्या है, क्यों या ये क्या मतलब क्या है? लोहड़ी तो नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट रहने वाले सब लोगों को पता ही होगा लोहड़ी का मतलब क्या होता है। लोहड़ी विंटर सीजन का एंड मार्क करती है, हार्वेस्ट सीजन को दर्शाती है। तो लोहड़ी का मतलब ये है। और सॉन्ग जो आप पूछ रहे थे, तो जब शाश्वत को मैंने बोला कि मुझे सुंदर मुंदरी ही सॉन्ग करना है, आप सबकी शक्लें देखते हुए काफी लोग जनरेशन वाई मिलेनियल्स ही लग रहे हैं मुझे, और मेरी मेमोरी लोहड़ी की ये है कि मैं ये सुंदर मुंदरी गा के अपने बड़ों से पैसे मांगती थी। तो इट इज बेसिकली लाइक एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। लोहड़ी पे जब हमने रिसर्च की, आप कह रहे हैं लोहड़ी पे बहुत सॉन्ग है, हमें तो कोई भी ऐसा सॉन्ग ऐसा नहीं मिला कि हमारे दिल को छू जाए। वही मेमोरी रिकन्फिल करना चाहती थी जो आप सबको अपने बचपन की याद दिलाए कि आप बड़ों के पास जाके सुंदर मुंदरी गा के पैसे मांगते थे। और जो ये जनरेशन है, जनरेशन जी, जिनको पता भी नहीं है कि लोहड़ी का मतलब क्या है, उनके लिए सिर्फ बॉनफायर कर देना, उसके अराउंड वो चक्कर काट लेना यही है। तो आई एम होपिंग कि इस गाने के बाद वो ये गाना गुनगुनाएंगे, इस पे डांस करेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि ये गा के अब जाओ अपने बड़ों के पास और पैसे मांगो। तो मेरे लिए लोहड़ी इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस सॉन्ग के साथ। सो या that's why I wanted to do this song. आपको कितना टाइम लगा आपको ये शूट करने में, और कोई कितनी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस कोरोना टाइम में? तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ी क्योंकि बहुत डिस्टेंस रख के और बहुत ज़्यादा जूम कॉल या फोन कॉल पे कोऑर्डिनेट करना पड़ा। इनफैक्ट हमने गाने को रिकॉर्ड भी घर पे किया, किसी स्टूडियो में जाके नहीं किया, मेरे घर के ड्राइंग रूम में ही रिकॉर्ड किया। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये मैंने कभी नहीं किया था पहले। बट हाँ, हमने काफ़ी जैसे अपने शूट वाले दिन भी सिर्फ मेकअप पर्सन मेरे पास आ पाती थी और जो डांसर्स थे सब कोविड टेस्ट करा के आए। तो इस तरीके के हमने प्रिकॉशंस ली, बट जितना हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ पहले मिलते, पूरा एक स्टोरी क्रिएट करते, वो काफ़ी हमें फ़ोन पे जूम कॉल्स पे करना पड़ा। चलो आपने इतना बेहतरीन सॉन्ग तैयार किया है, जो लोग इस गाने से इंटरेस्ट लेते, ज़्यादा खुश होकर वो देखते, वो लोग परेशान है, कहीं बॉर्डर पे इधर उधर बैठे हुए हैं। आपको कुछ महसूस हो रहा है कि जितना हिट होना चाहिए वो शायद ना हो पाए? ये इंटेंट के साथ तो सॉन्ग क्रिएट नहीं किया था, यही चाह रही हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें तो उस पर काफ़ी जगह मैंने लिखा है कि आई होप कि लोहड़ी की ये जो बॉनफायर में जो भी उनकी फार्मर्स की पेन, ग्रीफ, चिंता, परेशानी जो भी है वो भस्म हो जाए, एक नई शुरुआत हो। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से शाश्वत? हाँ, ऑफ कोर्स। और ये जो स्पेशली जो टेक्नोलॉजी ये दूर दूर तक गाने को पहुंचाती है। हो सकता है कि कनाडा में भी लोग लोहड़ी पे इसको नाच रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं जो भी बैठे हैं बॉर्डर पे, उन तक भी ये गाना पहुंचेगा डेफिनेटली। हो सकता है कि उनकी जो स्ट्रगल है उसमें थोड़ा 3 मिनट की रिलीफ मिल जाए, गाना सुन के थोड़ा सा वो पीछे आग जला ले, वहीं पे लोहड़ी मना ले, हो सकता है। और ये गाना जो है वो जब आप कोई म्यूजिक क्रिएट करते हैं तो वो एट दिस मोमेंट के लिए नहीं होता है। आपने एक बार जो चीज बना दी और एक बार वो, अब तो क्योंकि टेक्नोलॉजी है आप इंटरनेट पे छोड़ देते हैं, एक बार आपने उसको छोड़ दिया तो फिर वो एटर्निटी तक के लिए है। हो सकता है कि अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल कई सारे गाने हैं जो कि 80s में बने थे, लोग आज तक उस पर डांस कर रहे हैं, या 50s में बने थे, आज तक उस पर लोग उसको सुन रहे हैं, घरों में गाड़ियों में सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये जो what we have created together, it's going to be there forever, for not just this Lohri, but all Lohris to come.
मेरा सवाल ये है कि लोकेशन शूट कहाँ पे हुआ है इस पूरे गाने का? मेरे फार्म पे, मेरे अपने घर पे, नहीं, कहाँ, कौन सी जगह? पुष्पांजलि। ओके। इस सॉन्ग में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है? पूरे सॉन्ग में सिर्फ कोई एक आपका पर्टिकुलर फेवरेट मोमेंट? अगर आप सॉन्ग को देखें तो आई थिंक आई वाज हैविंग फन ऑल थ्रू द सॉन्ग। कोई टुवर्ड्स द एंड आई थिंक जब हम पॉपकॉर्न मूवी वो सब बॉनफायर में डाल रहे थे और कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं था, बस हमें यही डायरेक्शन थी कि जो आपका मन है, जैसे मूवमेंट करनी है, जैसे डांस करना है, तो बड़ा फ्री फ्लोइंग सा जो वो लास्ट का टुवर्ड्स द एंड लास्ट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, आई थिंक वो सबसे ज्यादा एंजॉय किया बिकॉज वो ऐसी फील थी जैसे अपने घर में ग्लोरी पार्टी हो रही है। थैंक यू। मेघा, आपने क्या कोई क्लासिकल या किसी और शैली में कोई क्लासेस ली है क्या? बचपन में जरूर सीखा है, बट उसके बाद फॉलो अप नहीं किया, बट शौक हमेशा से है। आई बीन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑलवेज। आई एम एन एंटरप्रेन्योर बट एन आर्टिस्ट एट हार्ट। सो जो मुझे अच्छे से जानते हैं वो यही कहते हैं कि शी वाज बोर्न ऑन स्टेज, बट एज अ चाइल्ड मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। मेघा, आपने जब पुरानी एल्बम पे भी काम किया है, बहुत शौक है आपको? हाँ जी, तो मेरी मॉम बहुत अच्छा गाती हैं, गुनगुनाती रहती हैं, उन्हीं से मैंने गाना भी सीखा, लिखने का शौक भी उन्हीं से आया। तो इस कोविड टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को रीडिस्कवर करने की, री इन्वेंट करने की, अपने पैशंस परस्यू करने की। तो अगर कोविड ना आता तो शायद मैं अभी सिर्फ अपना बिजनेस ही परस्यू कर रही होती। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अपनी मेंटल सैनिटी प्रिजर्व करने के लिए भी बड़ा जरूरी था। जो आपको दिल से खुशी देती हैं चीजें वो करिए। सो आई ट्राइड इट। मैंने शायद एक गाना सुना है आपका, ललचा गली, तो थोड़ा सा गा के सुनाइए। बहुत अच्छी है। 1-on-1 इंटरव्यू में करें। When I sit with you, definitely. मतलब इन दिनों बहुत से जो पंजाबी सिंगर हैं उन्होंने किसानों के सपोर्ट में कुछ गाने तैयार किए हैं, ऐसा कोई इरादा है आपका नियर फ्यूचर में? एक्चुअली सोच के तो कोई भी चीज़ नहीं की इस कोविड में, जैसे जैसे मन होता रहा करते हुए। अब मेरे ये लोरी सॉन्ग की जो क्रिएट किया है, यही हमारी डेडिकेशन है टू द फार्मर्स, होपिंग फॉर बेटर टाइम्स फॉर देम। लोहड़ी अगर आप देखें इट्स फार्मर्स फेस्टिवल। अगर आप देखें तो लोहड़ी का कोई भी गाना है वो फार्मर्स को ही दिमाग में रख के, उनकी इमेज रख के, गाँव की इमेज रख के, हल बैलगाड़ी ये सब दिमाग में रख के ही जब आप कंपोज करते हैं और गाते हैं, आप उस फील में गाते हैं, तो किसान तो उस पर डेफिनेटली नहीं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड वो इमेज आपके। ये सेलिब्रेशन ही फार्मर कम्युनिटी की है, चेंजिंग सीजन की है, हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करने की है। तो दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट दैट। यस मैम। क्या थोड़ा सा तो हो गई?